Hello students, today will we discuss about university wits and their contribution to English drama। देखिए हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स। ये क्या है? ये एक तरीके का ग्रुप है। ओके, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स, मैन ऑफ लेटर्स, हु रोट इन द क्लोजिंग years of 16th century. All of them were actively associated with the theatres and the plays written by them mark a pronounced stage of development over the drama which existed before them with their dramatic work. They paved the way for the great Shakespeare, who was indebted to them in numerous ways. These university wits are। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर हैं, जो कि जॉन लिली हैं, रॉबर्ट ग्रीनी हैं, जॉर्ज पीले हैं, थॉमस लॉज हैं, थॉमस नैश हैं, थॉमस किड हैं और क्रिस्टोफर मार्लो हैं। ओके, ये जो है हमारी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, ये विभिन्न लेखकों का एक समूह है जिन्होंने 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में रचनाएं लिखी। ये सभी रंगमंच से निकट से संबंधित थे तथा इनके द्वारा रचित नाटक पर रंगमंच का प्रभाव प्रकट करते हैं जो उनसे पूर्व से ही अस्तित्व में था। अपनी नाटकीय रचनाओं द्वारा उन्होंने महान शेक्सपियर के मार्ग को प्रशस्त किया। ओके, They were called university wits because they had training at one of the other 2 universities, Oxford and Cambridge. The only exceptions, and that a doubtful one, was Thomas Kidd. Apart from academic training, they had numerous characteristics in common. They were members of learned societies and rather liberal in the views concerning God and morality. They were all reckless. Further, in their intellectualism, they were true embodiments of the impact of the Renaissance on English culture and sensibility. All of them had fairly good relations with one another. When the university wits started writing, there were 2 fairly distinct traditions of dramatic art before them. One was the native traditions, which was vigorous, no doubt, but devoid of the artistic discipline of the classical Greek and Roman drama. The other was the tradition set by the imitators of ancient Roman drama, such works as a Sackville and Norton's Gorvodius and Ralph Royster Doyster are instances of the traditions differencing between the popular and classical traditional। ओके, देखिए जो है इन्हें यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 2 विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में किसी एक में शिक्षा पाई थी और केवल किड का ही एकमात्र अपवाद है। शिक्षा के अतिरिक्त इसमें अनेक समान विशेषताएं थीं। ये शिक्षित समाज के सदस्य थे तथा ईश्वर तथा नैतिकता के विचारों में स्वतंत्र थे। ये सभी अनियंत्रित घुमक्कड़ थे। अपनी मानसिक स्थिति में वे अंग्रेजी संस्कृति भावना में रिनेसां लिखना आरंभ कर दिया था। इन्होंने इन सबके आपस में बहुत ही अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने पूर्व अंग्रेजी साहित्य में 2 स्पष्ट विभिन्न प्रथाएं थीं। एक स्थानीय प्रथा थी जो कि कॉमेडी में शक्तिशाली थी, परंतु उनमें ग्रीक तथा रोमन नाटकों की परंपराएं थीं। ओके, इन्होंने देखिए नॉर्टन्स गॉर्वोडियस और राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो कि कॉमेडी थी, और जो नॉर्टन की गॉर्वोडियस थी वो फर्स्ट ट्रेजेडी थी। Okay, the university set about the work reforming the language of the drama. Lily learned the language of comedy, especially the prose, a wonderfully sophisticated touch. Peele gave it a rare sweetness, and Greene considerable generally and openness. Kid did not do too much except introducing exaggerated bombast, but Marlowe breathed into it that consuming intensity coupled with
Williams, which thrilled his contemporaries and thrills us even today. Blank verse became Marlowe's mighty lion. देखिए इसमें क्या था, इसके जो यूनिवर्सिटी बिट्स ने नाटक की भाषा में सुधार का कार्य भी आरंभ किया और लिली ने कॉमेडी की भाषा विशेष रूप से गद्य की कोमलता प्रदान की। पीले ने माधुर्य, ग्रीन ने स्पष्टता का समावेश किया, किरण अतिशयोक्ति निरर्थक शब्दों के प्रयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, परंतु मार्लो ने बुद्धिमत्ता के साथ अत्यधिक गहनता का प्रवेश किया जिसमें समकालीन तथा आज के लेखकों को रोमांचित किया गया। ब्लैंक वर्ड्स को मार्लो ने माइटी लाइन बनाया। ओके, अब हम इसके जो राइटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जॉन लिली। लिली इज बेटर known for his prose romance essays than his dramatic productions. It must be remembered that he himself was a courtier and wrote for the discerning courtiers. His plays are rather of the nature of Moscow, which were very popular with the queen and the court. He gave comedy a touch of sophistication and intellectual tone. Lily wrote 8 plays in all, out of which एडमिन एंड आर द बेस्ट नोन। ठीक है, जो जॉन लिली थे इन्होंने क्या करा, अपने प्रोज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। याद रखना चाहिए कि उस टाइम भी एक दरबारी थे और वो उनके लिए ही लिखता था। उनके नाटक बिल्कुल कॉमेडी जैसे होते थे जो रानी और उसके दरबार में बहुत ज़्यादा प्रिय थे। उसने कॉमेडी को अत्यधिक कोमलता, मानसिक वातावरण प्रदान किया और 8 नाटक लिखे। लिली के नाटक में हाई इमेजिनेशन थी। लिली की उपलब्धि विरोधी तत्वों के आपसी तालमेल में है। नेक्स्ट हमारा रॉबर्ट ग्रीनी। लाइक लिली ही हैज अ नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट इज वन एंड अटेम्प्ट हाई एक्सलेंस इन बोथ आर्ट्स। वी मस्ट रेकॉन हिज सर्विसेज टू पोएटिक स्टाइल in freeing the verse of the stage from pedantry and the overloaded diction. Some of his famous work are Orlando, Pirro, Prior Bacon, James Wall, etc. ओके, देखिए जो थे रॉबर्ट ग्रीनी लिए लिली के समान भी उपन्यासकार थे और नाटककार दोनों थे। इन्होंने भी उस क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्टता प्राप्त की। इनका योगदान पोएटिक शैली को रचनात्मक रंगमंच में पांडित्य से स्वतंत्र कराने और बोझ दूर करने में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। ऑर्नेल्डो, जेम्स द्वितीय, शेक्सपियर के बाद रॉबर्ट ग्रीनी को मार्लो के पश्चात दूसरा स्थान प्राप्त है। इनके कुछ जो हैं नाटक रोमांटिक प्रेम की कहानी है। शेक्सपियर की रचना छोड़कर एलिजाबेथ नाटकों में महिला पात्रों में सर्वश्रेष्ठ है। ग्रीनी को ब्लैंक वर्ड्स का प्रश्न जो उसने कॉमेडियन में प्रयोग की है उसे इससे अधिक लचीलापन प्रदान किया। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज पीले। ही theatrical activities extended over a period of 15 years. He was not cut off in mid-career like Marlowe and Greene. He can scarcely be said to show the instinct of a true master, whether in plot, portraiture or versification, but his versatility, his urban and graceful treatment of his theme. देखिए उसके जो रंगमंच पर क्रियाकलाप 15 वर्ष से भी अधिक चले। मार्लो तथा ग्रीनी के समान उनका जीवन भी मध्य में समाप्त नहीं हो गया था। यह वास्तविक निपुणता के गुण नहीं थे, चाहे वह कथानक, चित्रण या काव्य हो, परंतु उसके बहुमुखी प्रतिभा, विषयों का उसका गौरवशाली प्रस्तुतिकरण, भाषा में कल्पना, चित्रों पर नियंत्रण, भावनात्मक दुर्बलताओं से स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे थॉमस किड। Achieved great popularity with his first work, The Spanish Tragedy, which was translated to many European languages. He introduced blood and thunder element in the drama, which proved one of the attractive features of pre-Shakespearean drama. Kidd's play is well constructed, full of strong external action. The stage effects are well managed. The murders are thrillingly committed. Kidd cannot rival Marlowe in writing and high एस्टोनिंग लाइन। थॉमस किड की जो प्रथम रचना थी वो स्पेनिश ट्रेजेडी थी। इसका अनुवाद विभिन्न यूरोपियन भाषाओं में किया गया है। उनके नाटक में खून खराबा, तूफान का समावेश है जो कि नाटक को अट्रैक्टिव बनाता है। किड का नाटक सुनने में शक्तिशाली बाह्य क्रियाओं से भरपूर है। रंगमंच का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है। इसमें हत्याएं भी बड़ी रोमांचकारी हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। His plays are Tamberlane, The Great, Dr. Faustus, The Jew of Malta, Edward the Second. Marlowe's contribution to English tragedy is very vital. Marlowe promises that his play is going to be different from the conventional play in both its language and subject. First to all, Marlowe exalted and varied the subject matter of tragedy. For the ancient motive of revenge, he substituted the more interesting theme of ambition for power as in Tamberlane, ambition for inventive knowledge as in Dr. Faustus, and ambition for gold as in the Jew of Malta. देखिए जो उन्होंने जो नाटक थे क्रिस्टोफर मार्लो के टम्बरलैन, ग्रेट डॉक्टर फॉस्टर, ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड है। अंग्रेजी ट्रेजेडी में मार्लो का योगदान अति महत्वपूर्ण है। मार्लो ये विश्वास दिलाते हैं कि भाषा तथा विषय वस्तु दोनों में ही पारंपरिक नाटकों से भिन्न है। मार्लो ने ट्रेजेडी की विषय वस्तु को महानता व विभिन्नता प्रदान की है। सिनिका के बदले लेने के उद्देश्य के स्थान पर उसने इच्छाओं का रुचिपूर्ण विषय को स्थान दिया, जैसे टम्बरलैन में शक्ति को आकांक्षा, डॉक्टर फॉस्टस में असीमित ज्ञान, जियो ऑफ माल्टा में स्वर्ण की आकांक्षा, उसमें नए प्रकार के ट्रेजिक हीरो को आगे बढ़ाया। उसने अरिस्टोटल के ट्रेजिक हीरो को विचारधारा को पुनर्जीवित किया, क्योंकि पात्रों में निश्चित ट्रेजिक फ्लॉ का समावेश किया गया। इसमें क्या उनके जो हीरो हैं वो सुपरमैन हैं, उनका संभव से प्रेम है, उनकी इच्छाओं तथा जीवन को विरोधी शक्तियाँ जो उनके मार्ग में बाधक हैं के मध्य संघर्ष है, परंतु इस बाहरी संघर्ष के साथ साथ कम से कम डॉक्टर फॉस्टस में कुछ अन्य पात्रों में भी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त तो उनके नाटकों को एकता प्रदान की गई है। पुरानी कहानियों को आकारहीनता से मार्लो ने नाटकों की रचना की जो वास्तविक ट्रेजेडी है तथा शेक्सपियर के लिए आदर्श है। मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स की स्थापना ट्रेजिक उनका जो माध्यम है उसका ब्लैंक वर्ड्स निश्चित ही गॉर्बोड्यूस से श्रेष्ठ है। मार्लो के साथ अंग्रेजी नाटक इतिहास एक नवीन युग का आरंभ होता है।